this. No one. It's ma min rajulin. Maulana knows very well where we use the ma. Like la. No. Like la ilaha illallah. No Allah. And totally denied. No Allah. No God. Nothing. Illallah. Right? You understand the importance. Here also. Ma min rajulin. Every person, whoever, every person who recites. Aw zukirna. Either recites or hears, listen to the elegies or Marcia Nuha. And what happened? يَخْرُجُ مِنْ عَيْنِهِ مَاءً. And tears roll over his cheeks and it come out of his eyes. وَلَوْ مِثْلَ جُنَاحٍ. And even though that the size of the tears is very small. Very small. إِلَّا بَنَ اللَّهِ. Once such a small tears roll over his cheeks, Allah will make a huge palace in the Jannah. And then he says, وَجَعَلَ ذَلِكَ الدَّمْعَ حِجَابًا. And this tear will be a barrier for him and the hell. It will be a barrier. This tear, what we, it comes out because of our crying and in remembrance of Imam Hussein's sacrifices. He says, وَجَعْلَ ذَلِكَ الدَّمْعَ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ. Allah will make this tear as a barrier between him and the hell. This is the hadith. I think I'm reading this last hadith for today. This is the fourth hadith. Allahu Akbar. This is why we sometimes as a Shia are referred to as the Qawm-e Giryakuna. It's a community who keep crying and weeping. It has been sometimes in the riwayat also, it has become very popular that this is a community of crying community. Something like crying community, weeping community. Why? Why not? Imam Sadiq alayhi salam says, وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَبَكَى عَلَى الْحُسَيْنِ 20 سَنَةً وَمَا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ إِلَّا بَكَى. He says, my grandfather Imam Ali ibn al-Husayn, that is Zainul Abidin alayhi salam, he cried for 20 years continuously. Imam Zainul Abidin alayhi salam cried for 20 years continuously, and it never happened that if food is presented to him and he has not cried. Whenever food and water was presented to him, he used to cry. As I said yesterday also, his companions asked, why Imam, what happened to you? He says, I have seen how my thirsty sister was crying for a drop of water. I have seen, I have felt how my sister was crying for a grain of food. But no one was providing any drop of water or any grain of food for her. So that's why Imam Zain Abdul Islam cried for 20 years continuously, just remembering the event of Karbala. So inshallah, may Allah accept our majalis and accept our girya, our crying, and these tears may get a place in the Ruma of Fatima Zahra Salamullah alayha. Narae Takbir, Allahu Akbar. Narae Risalat, Ya Rasulullah. Narae Adali, Ya Ali. Narae Salwar, Allahumma salli ala Muhammad. Rahimallahu man qara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवahhidीन वन नारु लिल आसीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिन नबीन व खातमिन नबीन हबीबे इलाहिल आलमीन मौलाना बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्ज़ व तहरहum तत्हीरा सय्यदुल इमामिल मुबीन अल-हुज्जतिस सानी अशर अल-महदी सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि अल्लज़ी यमलअल्लाहु al-अर्ज़ बिही क़िस्तन व अदला कमा वलिया ज़ुल्मन व जौरा अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अज़्ज़क़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन हज़रत ग्राम कदर 1434 हिजरी की ये 4 मुहर्रम हराम की मजलिस आप हज़रात के महफूज हाफिज़ों और समाअतों के हदिया समाअत है। उम्मीद है मुझे कि आप हज़रात वो मौजू मुश्किल मौज़ूआत जो आपके सामने मैंने मुश्किल कुशा को सहारा बनाकर पढ़े, आप हज़रात ने ज़रूर उनसे इस्तिफ़ादा किया होगा और आज की मजलिस भी आप हज़रात की खिदमत में फ़ज़ीलत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस्मत और बंदगी के साए में इस उन्वान से आपकी खिदमत में अपने अराइज़ को रखना चाहता हूँ और अपने अराइज़ को मौला मुश्किल कुशा की दहलीज पर इस उम्मीद के साथ कि इस मजलिस से हमें यकीनन रिज़्क़ तौबा मिलेगा। मेरे पास एक फरमाइश है, अगर वक्त मिला तो मैं समझ नहीं आ रहा कि शुरू में पढ़ूँ के बाद में पढ़ूँ, लेकिन मैं जो है ना मौजू से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात की खिदमत में वो चीज़ मैं पहले बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रा सी तफसीली चीज़ है और मैं आपकी खिदमत में अगर मुमकिन हुआ तो आज टाइम रहा तो आज ही, और नहीं तो कल इंशाअल्लाह पढ़ूँ। मैंने आप हज़रात की खिदमत में कल अराइज़ जो अपने पेश किए थे उसमें मैंने आपकी खिदमत में याद होगा ये किया था कि तमाम उसका मुख्तसर तौर पर ताकि आपके ज़हन आमादा हो और बता दूँ कि अर्ज़ ये किया था आपकी खिदमत में कि जितने अम्बिया मा सबक आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले परवरदिगार आलम ने उन्हें मुख्तलिफ मौज़ात देकर इस दुनिया में भेजा मुक़्तज़ाए ज़मान के एतबार से। अब हमारे प्यारे नबी जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्हें परवरदिगार आलम ने कौन सा मौजज़ा अता फरमाया। अगर हम खाली ये कहें कि कुरान मजीद और खाली 1400 बरस पहले का ज़माना, तो मैंने आपको किया था कि आप अपने सलाम को लपेट कर रख दें और घर चले जाएं, हम सब जाते हैं।
और अजान से ये तर्जुमा निकाल देंगे अशहदु अन्ना, देखें मैं तकरार किसी लफ्ज़ की नहीं करूँगा, मैं उस बात को दूसरे तरीके से कह दूँगा मुख्तर 5 मिनट में कि अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर आप यूँ करके तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं तो ठीक है, क्योंकि रसूल वो तुलुए सूरज क़यामत तक के लिए और हमेशा के लिए, और अगर वो थे तो आप अपना इस्लाम को लपेटें और चले जाएं। तो अगर खाली कुरान मुअज़्ज़ा था तो खाली कुरान मुअज़्ज़ा नहीं था, क्योंकि ये उम्मत मैंने कहा कि और उम्मतों में इसमें फ़र्क ये है कि टेक्नोलॉजी के एतबार से ये खला में जाएगी, ये खलाबाजियाँ करेगी, ये स्पेस में जाएगी, ये कमेंट डालने की कोशिश करेगी। लिहाजा परवरदिगार आलम ने मेराज जिस्मानी रसूल अकरम को मुअज़्ज़ा बनाया और हर वक्त के लिए, हर टाइम के लिए मुअज़्ज़ा बनाकर पेश कर दिया कि तुम में वो जुर्रत पैदा ना हो सकेगी तुम रसूल क़यामत तक कि इस मेराज जिस्मानी रसूल अकरम का जो है वो जवाब लेकर आओ। ये मेरा मौजू था। आज मैं आपकी खिदमत में बंदगी के आईने में फजीलत अहले बैत अलैहिस्सलाम की पढ़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखें बंदगी वो चीज़ है, सबसे बड़ा शरफ है इंसान का बंदगी, जिसका नाम है। जनाब याहया बहुत ही मज़लूम नबी हैं अल्लाह के, और गिरिया फरमा रहे हैं, बेपनाह गिरिया फरमा रहे हैं, और इतना गिरिया कि परवरदिगार आलम ने अपने एक मलक को भेजा, और मलक को भेजने के बाद उससे कहा कि ऐ मलक जाओ और याहया से सबक पूछो कि गिरिया किस लिए कर रहे हैं, क्या गिरिया याहया तुम्हारा जहन्नम के खौफ से है? तो अगर जहन्नम के खौफ से है तो याहया जहन्नम को हमने तुम पर हराम करार दिया है, इसकी जानिब से मुतमईन हो जाओ। और अगर शौक़ जन्नत में है तो तुम हमारे प्यारे नबी हो, जन्नत को हमने तुम्हारे लिए मखसूस कर दिया है। एक मरतबा मलक आता है और आने के बाद दुरूद के तहियत व सलाम के जनाब याहया की खिदमत में अर्ज़ करता है, ए अल्लाह के नबी आप इस कदर क्रिया क्यों कर रहे हैं? एक मरतबा जनाब याहया ने इरशाद फरमाया और वो पैगाम पहुँचाया कि परवरदिगार आलम कहता है कि अगर आप खौफ जन्नत में गिरिया कर रहे हैं तो जहन्नम को आपके जिस्म के ऊपर आपके ऊपर हराम करार दिया है, और अगर शौक़ जन्नत में आप गिरिया फरमा रहे हैं, आप उसके हबीब हो, महबूब हो, अल्लाह ने जन्नत आपके लिए जो है सजाई है, संवारी है। तो एक मरतबा जनाब याहया ने इरशाद फरमाया और कहने लगे कि मेरे अल्लाह को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि याहया न खौफ जहन्नम में गिरिया करता है न शौक़ जन्नत में गिरिया करता है। एक मरतबा निदा आती है और निदा आई कि फिर ये बताओ याहया कि तुम किस वजह से जो है गिरिया कर रहे हो? तो याहया ने इरशाद फरमाया जवाबन कि गिरिया सिर्फ एक बात की वजह से और एक बिना पर है, और वो ये है, एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है परवरदिगार आलम तुझसे, वो ये कि बस तू ना चाहे मुझे जन्नत दे न कुछ दे, बस मुझे तू अपने बंदा कहकर एक मरतबा मुझे पुकार दे, मुझे अपना बंदा कहकर जो है वो पुकार दे। अल्लाहु अकबर। याहया के दिल में, यानी बंदगी इतनी बड़ी शय है कि याहया के दिल में जो एक तड़प है वो बंदगी की है, और वो परवरदिगार आलम के हुजूर में क्या कह रहे हैं कि अपना बंदा कहकर पुकार दे। अल्लाहु अकबर। ये याहया की मंजिल है कि याहया ये जो है तमन्ना कर रहे हैं कि अल्लाह उसे बंदा कहे। एक मंजिल इम्तिहान में एक हमने बंदा भी देखा कि जो असर आशूर खड़ा हुआ है और चुपचाप है, उसके लबों पे कुछ नहीं है और आवाज आ रही है, फदखुली फी इबादी, मेरे बंदे तू आजा, मेरे बंदे तू आजा, तू मेरे बंदों के अंदर दाखिल हो जा। यानी अपनी तरफ से तमन्ना करना और है और अल्लाह की जानिब से बंदा कहलाना और है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले बंदगी की तमन्ना करना, यह बंदगी सबसे बड़ी है। जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि रसूल अकरम जो मैंने हालात और वाक़यात करके आपकी खिदमत में पेश किए, यही रात थी, यही सुहानी रात थी। जिब्राइल अमीन आए और आने के बाद परवरदिगार आलम की जानिब से ले जाने के लिए, लेकिन अल्लाह के रसूल, ये महबूब, ये पैकर नूरानी आराम फरमा रहा है। एक मरतबा जिब्राइल की हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के रसूल को उठा दे। आकर पायती खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा कि ये अल्लाह का महबूब और ये हबीब उठेगा कब। थोड़ी देर गुजरी थी कि अल्लाह के हबीब की आंख खुली, देखा जिब्राइल सामने मौजूद है, दुआ सलाम हुई। एक मरतबा जिब्राइल ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह के हबीब या मोहम्मद,
ये आपसे फरमाता है बाद दुरूद और तहियत सना के बाद कि अल्लाह ने तुम्हें ये 2 तमगे भेजे हैं, अब इन 2 तमगों में से जो चाहे वो इख्तियार कर लो। कहा कि कौन से 2 तमगे हैं? कहा कि पहला तमगा ये शहंशाहियत दुनिया का है, इस तमगे को, इस ताज को उठाओ, ऐ मोहम्मद अपने सर पर सजा लो इस ताज को। परवरदिगार आलम तुम्हारी मंजिलत में से कुछ कम नहीं करेगा। तुम जब भी हबीब इलाही रहोगे, जब भी महबूब खुदा रहोगे, तुम्हारे इतनी शहंशाहियत देगा, इतनी सल्तनत को वसअत देगा कि सुलेमान की हुकूमत जो है तुम्हारे हुकूमत के सामने शर्मसार नजर आएगी। इसे कबूल करो। कहा कि दूसरा तमगा बताओ? कहा कि दूसरा तमगा है वो अल्लाह की बंदगी का है। एक मरतबा रसूल अकरम ने कहा जिब्राइल इस शहंशाहियत वाले ताज को उठा लो, ये बंदगी वाले जो है वो तमगे को मुझे दे दो। एक मरतबा अब यहाँ पर महबूब में और हबीब में जो है वो सामने से बिल्कुल डायरेक्ट बात हुई। एक मरतबा ये क़िससुल अंबिया के अंदर लिखा हुआ है वाक़या, जैसे रसूल अकरम ने कहा कि हमें ये बंदगी जो है परवरदिगार आलम की मंजूर है। परवरदिगार आलम की निदाई, ए हबीब, ए मोहम्मद, ए यासीन, ए ताहा, ए मुज़म्मिल, ए मुदस्सिर, तुमने इस बंदगी को कबूल किया तो क्यों नहीं और तो नहीं मुझे भी अल्लाह कहकर न पुकारना, जब तक मैं हर मुसलमान की नमाज के अंदर मेरे तौहीद के इकरार के बाद तेरी नबूवत का इकरार न करा दूंगा, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं करूंगा। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मोहम्मद की अब्दियत वो है कि जिसका तज़किरा परवरदिगार आलम ने उसकी रिसालत से पहले किया। और आप देखें तारीख के अंदर उससे पहले जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा परवरदिगार आलम ने किया। तो ईसा ने किस बात को कहा कि जब माँ पर इल्ज़ाम लगाया इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल-किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे अपना बंदा बनाया, मैं बंदा परवरदिगार हूँ। अल्लाह अकबर। हमारे इस माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हम लोग कहते हैं फला का बंदा, अल्लाह का बंदा, हम अल्लाह के बंदे हैं। ये $1000 बंदा खुदा की जाने हमारी रसीद होनी चाहिए। खुदा की कसम इस बंदगी को या बंदा कहने वाले को ना बंदगी की चाशनी का पता है, ना ऐलान करने वाले को, ना कहने वाले को। ये बंदगी इतनी बड़ी शय का नाम है। एक मरतबा ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा। वो यहूदी जो माँ की इस्मत की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है, जैसे ईसा की अब्दियत का तज़किरा सुना वापस चले गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो अब्द खुदा हो, जो अल्लाह का बंदा हो, फिर उसकी माँ के दामन के ऊपर दाग और धब्बा नहीं होगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब्दियत है, ये बंदगी की मंजिल है। आप देखें अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफे के अंदर तशरीफ लाए और किसी ने इस किश्वर इस्लामी के अमीर का तज़किरा सुना दूर दराज इलाकों में। अजीजों, आप समझे कि अपने आप को बंदा कहना और है। तो ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये खाली खिताबत वाली बात है। देखिए अल्लाह ने जो है ना वो ईसा को नहीं कहा कि ईसा मेरा बंदा है, लेकिन मोहम्मद को कहा कि मोहम्मद मेरा बंदा है, मैं तेरी अब्दियत को सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस ये अली के दौर में सुना कि ऐसा कश्वर है इस्लामी का हुक्मरान हाकिम आया है, ऐसा खलीफा आया है, चला। और वो जानता था अली अलैहिस्सलाम को गायबाना तौर पर। अल्लाह अकबर। अली की मंजिलत देखिए। मैंने एक बात उस दिन छोड़ दी थी, आपकी खिदमत में वर्ड कर देता हूँ। किसी ने, मैंने आपको बताया था कि अली अलैहिस्सलाम सफ़र को उबूर कर जो है वो मिंबर तक पहुँचना चाहते थे। तो अली अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर आने के बाद एक जुमला कहा था उनसे। मैंने आपसे कहा था वक्त और मसलहत के तकाजे से अपनी बात को रिजर्व करते हुए मैंने ये बात छोड़ी थी, आज आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। उन्होंने कहा कि कूफे वालों, तुमने मेरे बारे में सुना, सब जानते हो, लेकिन तुमने गौर नहीं किया इस बात का कि वो अली जो मस्जिद में सबसे पहले आता था या आता है, आज वो मस्जिद में सबसे बाद में क्यों आया था, हालांकि पहला दिन था। तुम मेरी इबादत के बारे में जानते हो, मेरी कुर्बत के बारे में रसूलुल्लाह से पहचानते हो, मेरे बारे में तुमने सुना हुआ है, बहुत कुछ जानते हो। आज अली जो है ये सबसे बाद में क्यों आया? लोगों ने कहा कि ला नअलमु या इब्न अबी तालिब,
ऐ अली इब्न अबी तालिब हमें नहीं पता। अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यही तो समझाना चाहता हूँ कि अपने हुक्मरां को, अपने लीडर को, अपने रहबर को, अपने खलीफा को उसके लिबास के जरिए से मत पहचानना, उसके इल्म और तक़वे के जरिए से उसे पहचानना। ये अली जिसकी अबा के अंदर इतने टाके हैं, अली की अबा और जूतियों में इतने टाके, अली अलैहिस्सलाम कहते इतने टाके लगे आए हैं मैंने इसमें, इतनी बोसीदा है कि कोई फकीर भी मुझसे कबूल नहीं करेगा। लिहाजा अब्दियत और बंदगी, उस शख्स ने सुना था कि कोई हाकिम है, पूरा है। एक मरतबा आया वो मस्जिद कूफा में, अज़ीज़ान गिराम ये कदर वो चाहता था, पूछा उसने कि अली अलैहिस्सलाम कहाँ रहते हैं? कहा कि छोटा सा घर है। अली अलैहिस्सलाम का न कोई कसर है, न कोई शहंशाहियत है, न ताज है। अली का दारुल खिलाफा है, कहिए कि अली का दरबार, अली की मस्जिद है। आपको मालूम है कि उस जमाने के अंदर होता ये था कि मस्जिदें मुसाफिर खाना भी होती थी और इबादत खाना भी होती थी। सुनिए अली का चाहने वाला कौन होता है, इबादत इलाही कर रहा है, अली अलैहिस्सलाम पीछे से आ गए, उसका जोश अकीदत, जोश जज्बा, उसका रुकू, क़याम, सूद, सुजूद और कुनूत पढ़ने का अंदाज इस तरीके था कि उसने अली अलैहिस्सलाम को मुसख्खर कर दिया। अली अलैहिस्सलाम रुके और एक मर्तबा जब उसने नमाज को तमाम किया, अली अलैहिस्सलाम ने उससे मुखातिब होकर फरमाया, अदरिफनी या शेख, ए बुजुर्गवार अपना तारुफ तो मुझे कराओ। एक मर्तबा उसने निगाह उठाकर देखा, अली को देखा नहीं था, अली के बारे में सुना था। एक मर्तबा कहता है सर झुकाकर, अना शियत अली इब्न अबी तालिब, मैं अली का शिया हूँ। एक मर्तबा अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को बुलंद किया अली के रुखसार पर। अभी आपने सुना यही लफ्ज हैं हदीस के, तरक रकत अला वजह अली इब्न अबी तालिब, आंसू जो है अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बेसाख्ता जारी हो गए। अली ने हाथों को उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा शहद हाज़िही शियती, ऐ परवरदिगार आलम गवाह रहना ये मेरा शिया है। यानी अपने आप को शिया और अली का बंदा कहना अलग बात है, अली हमें अपना शिया कहते दूसरी बात। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये बंदगी है, बंदगी की मंजिल। अजीजों, इसी अली का पोता इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। देखिए आप जरा सा मेरे साथ चले, 4 बरस का सिन है, इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम को बुखार आ गया, शिद्दत तब की वजह से, मरज की वजह से पूरा जिस्म जो है गर्म हो रहा है। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा फर्जंद अजीज ये करबला का मुसाफिर, ये राह मुस्तकबिल का बीमार है। इमाम अलैहिस्सलाम आए, बेटे को गोद में उठाया, उठाने के बाद जो है गले से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया, रुखसार पे बोसा दिया। 4 बरस का सीन है। अभी आप देखें बच्चे अभी पढ़ रहे थे, खुदा की कसम पे मुझे प्यार आता है, मेरे मौला का जिक्र करते हैं। क्यों? अली अलैहिस्सलाम ने अपने इमाम हुसैन सलाम ने उठाया इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को, और उठाने के बाद जो है रुखसार का बोसा लिया, पेशानी का बोसा लिया, और एक मर्तबा एक सवाल किया अली अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि बेटा कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वो जवाब दिया है 4 बरस के सिन में कि 1000 आरिफ मिलकर इस मकूले का जवाब नहीं ला सकते। एक मर्तबा कहा कि बाबा बस एक ख्वाहिश है। कहा बेटा ख्वाहिश बयान करो। कहा कि बाबा दुआ कीजिए हमारी कोई ख्वाहिश ऐसी ना हो कि जो ख्वाहिश परवरदिगार के खिलाफ हो। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर ख्वाहिश उसके ख्वाहिश के मुताबिक। यह है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अगर आप अपने बच्चों से यूं कहें कि अली इब्न हुसैन, तो हो सकता है वो शायद नाम न समझ सके, लेकिन अगर उसके सामने कह दें ज़ैनुल आबिदीन तो फौरन बोलेगा कि चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का नाम है, जबकि ये नाम नहीं है, लक़ब है। अल्लाहु अकबर। इन सिफतों को कैसे अर्ज़ किया था कि वो सिफत नाम के ऊपर गालिब आना। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये उनका कैरेक्टर,
और जब किसी ने इमाम अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि अस्सलाम अलैका ज़ैनुल आबिदीन, सलाम आबिदों के ज़ीनत आपके ऊपर, हालांकि लक़ब था। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने फर्जंद से, अभी पास इमाम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना आपने कि बेटा वो सहीफ़ा लेकर आओ जो मेरे चचा हसन इब्न अली मुश्तबा अलैहिस्सलाम का है। वो जब सहीफ़ा आया तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने वो इबादत का अंदाज जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का था दिखाते हुए उस शख्स को कहा कि जब मैं इस सहीफे के अंदर अपने दादा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इबादतों का रंग और ढंग समझता हूँ तो मेरा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है, और मैं देखता हूँ किस अंदाज में मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब जो है वो इबादत परवरदिगार किया करते थे। तो आप समझ में आया आपको कि आपका लक़ब जो है वो ज़ैनुल आबिदीन भी है, आपका लक़ब जो है सैयद सज्जाद भी है। आज दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी बड़ा इबादत गुजार हो परवरदिगार आलम का, वो आबिद तो हो सकता है, ज़ैनुल आबिदीन नहीं हो सकता। और सैयद सज्जाद उनका लक़ब है। तो आरिफीन ये कहते हैं, उरफा ये कहते हैं कि क्या फ़र्क है, हम आप जो है वो साजिद हैं, हम भी सजदा करते हैं, लेकिन वो सज्जाद हैं। तो साजिद और सज्जाद का फर्क क्या है? तो उलमा ने लिखा, आरिफीन ने लिखा, मुहक्किकीन ने लिखा, वो जो अल्लाह वाले हैं वलियों ने लिखा कि सज्जाद का और साजिद का फर्क यह है, तवज्जो मेरी जानिब रहे, कि साजिद वो होता है जो अपने सजदों के लिए पाक जमीन को तलाशता और ढूंढता फिरता है। सज्जाद वो होता है जहां पाक जमीन जो है वो उसके सजदों के लिए तड़प रखती है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहां पाक सरजमीन जिसके सजदों की जो है मुतमन्नी है, अल्लाह अकबर, वो शाम गरीबा और वो जले हुए ख़याम, और उसके बाद जो है तख्ती रेगज़ार पर शाम गरीबा के अंदर सजदा करना और उस पर सैयद सज्जाद का हाथ उठाकर ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल क़ुरबान, परवरदिगार आलम तू हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। ये सैयद सज्जाद का जिगर है, किसी और का जिगर नहीं। ये इमाम सैयद सज्जाद, तारीख़ ये लिखती है कि इमाम सैयद सज्जाद ने तकरीबन 30 या 40 हज जो है वो 25 हज उसमें से पैदल किए हैं, 30-40 मरतबा हज किया है। अज़ीज़ान किराम, ये कदर इमाम अलैहिस्सलाम हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बनी उमैया का ये जो फ़कीर शख्सियत थी, ये भी हज के लिए आया हुआ था। और ये हज के लिए जाते क्यों थे? इसलिए कि अपनी शान और शौकत और अपनी शाही दिखाने के लिए मुसलमान आते थे, उन पर अपनी सतवत और नफ़वत का रोब और दाव और दबदबा जो है अपनी हुकूमत के पाए मजबूत करने के लिए वहाँ पर जाया करते थे। वहाँ पर इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम भी पहुँचे हुए हैं। ये हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, इसके सर पर ताज भी है, ताज में हीरे भी हैं, लाव लश्कर भी है, इसके पास क्या चीज़ नहीं है, जर्नैल इसके पास मौजूद है। लेकिन ये चाहता है हज के दौरान कि हजर अस्वद को बोसा दे ले, लेकिन अल्लाह अकबर, मुसलमानों की भीड़ इतनी है कि इसे मौका ही न लग सका कि हजर अस्वद का बोसा दे पाता। एक मरतबा ये परेशान होकर और थक हार कर एक बुलंदी के ऊपर आ गया कि भीड़ छटेगी तो मैं अपने इस अल्लाह के घर के हजर अस्वद का बोसा लूंगा। एक मरतबा एक सामने से शख्सियत जिसे जानता तो है लेकिन पहचानता नहीं है, यानी जानता है, जान के अनजान बनता है। देखा कि अली इब्न अबी तालिब यानी अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, साथ में उनके कुछ साथी हैं, लेकिन किस अंदाज में आ रहे हैं? वही दादा वाला अंदाज, वही बाप वाला अंदाज के तक़वे का लिबास है, क़नाअत का जो है वो सज्जादा है, हाथ में खाके शफा की तस्बीह है, इस्मतों का हिसार है और इफ़्फ़तों का हिजाब है और तत्हीर का फर्श है। शायद खाके शफा का मुसल्ला हो, लबों पर तस्बीह है, तकदीर है, तमजीद है, सना करते हुए, जिक्र करते हुए, फिक्र करते हुए एक मरतबा जैसे खाने काबा की जानिब रवा दवा हुए, ऐसा लगा कि मजमा काई की तरह, लिखता है रावी कि मजमा काई की तरह फटा। ऐसा लगता था गोया मादर अली के लिए जिस तरीके से खाने काबा मुस्कुरा मुस्कुरा कर जगह दे रही
रही थी। इसी तरीके से जो है अली इब्न हुसैन इस्लाम के लिए मजमे ने जगह दे दी। एक मरतबा अली अलैहिस्सलाम जो है अली इब्न हुसैन ना ऊपर देखते हैं, वहां पर पहुंचे हजर अस्वद के पास। रावी लिखता है कि ऐसा लगता था कि हजर अस्वद जो है अपने मकाम से उठेगा, मौला के कदमों में आएगा और उनके हाथों को चूमेगा कि तेरी विलायत के सदके, तेरे इमामत के सदके। अज़ीज़ान किराम जब वापस आए हैं अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये मंजर एक ऊंचाई से हिशाम इब्न अब्दुल मलिक देख रहा था। एक मरतबा फरजदक साथ में है, लाहौर लश्कर साथ में है, फरजदक शायर है दरबारी। एक मरतबा कहता है कि ये कौन है, ये कौन है। अज़ीज़ान किराम आप किसी भी इल्म नफ्सियात के माहिर से ये पूछिए कि किसी को जलील करने का ये एक बहुत बड़ा टैक्ट है, साइकेट्रिस्ट से पूछिए नफ्सियाती तौर पर। और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस सब्जेक्ट को इल्म नफ्सियात की रूह से अगर ना पढ़े, पढ़ ही नहीं सकते। हर तारीख के वाक़े को आपको देखना पड़ेगा इल्म नफ्सियात के किन माहौल में किस तरीके से वाक़या रूनुमा हुआ है कि ये है कौन। एक मरतबा फरजदक ने देखा हिशाम इब्न अब्दुल मलिक को और देखने के बाद कहा कि तू हिशाम अमीर, तू इन्हें नहीं पहचानता। अगर हिशाम, पहला जुमला कहा हिशाम ने कि अगर अमीर तू इन्हें नहीं पहचानता, वो चाहता ना कि मैं अनजान बन जाऊं, ये कौन है। तो हिशाम से कहा, जनाब फरजदक ने कहा कि हिशाम अगर तू इन्हें नहीं जानता तो इसमें इनकी कोई तजलील नहीं है, तेरी जिल्लत है कि तेरी हुकूमत में इतना बड़ा आदमी रहता है तो उसे नहीं पहचानता। नवाज भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद अब अगला जुमला कहा। अब पूरा फिल बदी जो है एक जो है ना वो मुसद्दस जो है वो जनाब फरजदक ने जो है इमाम आले मकाम अलैहिस्सलाम की शान में इरशाद फरमा दिया। और मुसद्दस में पहला जुमला ये था, हादल्लज़ी तारिकुल वतहा वतअतहु, अरे ये वो है कि जिसके कदमों को चाप को जो है वो मक्के की दीवार दीवार जानती है। इसके कदमों की चाप को जो है सफा और मरवा के जो है ना वो पहाड़ जानते हैं। एक मर्तबा परेशान हो गया हिशाम इब्न अब्दुल मलिक और वो ये कहता है, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, फरजदक रहते दरबार में हमारे हो, तारीफ उनकी करते हो, तुमने हमारी शान में तो कोई कसीदा नहीं कहा कि हिशाम तेरा हाफजा कमजोर है। मैंने 2 कसीदे अभी तेरी शान में कहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जैसा तू है तेरी सना कर दी, मैंने इसकी सना वैसी की जैसा ये है। और है हिशाम जान ले तू कि तू जो है वो दुनिया का बादशाह है या आखिरत का बादशाह है। तो जितना फर्क दुनिया के बादशाहत में और आखिरत के बादशाहत में है, उतना ही फर्क जो है आले मोहम्मद में बनी उमैया में है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद ये है बंदगी, ये है बंदगी। अगर ये बंदगी का जज्बा हमारे अंदर आए तो ये हमारे मसाइल कम्युनिटीज के जो सुनने में मिलते हैं हर जगह पर, यहाँ के भी अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत कम है, जितना भी अल्लाह करे ना हो, लेकिन आप देखें हमारे मसाइल खुद ब खुद सुलझ जाए। इस वाक़े की इत्तला चार बाग आलम हर सू इस वाक़े की इत्तला फैल गई। एक मौला का चाहने वाला था, लेकिन देखिए मार्फत वो होती है, मार्फत ये दर्जे क्यों होते, ये दर्जे इसी वजह से हैं, ये एहदिन सिरातल मुस्तकीम ये जो है ना कि इसके अंदर जो है इजाफे का इम्कान है। 10 दर्जे बनाए, वो शायद हज पे मौजूद था या क्या था, लेकिन उसके बाद उसका अकीदा ये था कि हज करने के बाद वो भी हर साल हज पर आता था कि हज बगैर इमाम की मुलाकात के नामुकम्मल है। लिहाजा हज के बाद हमेशा वो मदीना आता और जब भी चलता था, इमाम सुनिए आपको इस वाक़े को, अरे ये माले मजलिस है, ये वाक़या मैं आपकी खिदमत में पढ़ा होगा मैंने और पढ़ा भी है शायद, लेकिन उसको नए अंदाज में मैं कोई बात रिपीट अपनी नहीं करना चाहता जो मैंने कभी माज़ी में पढ़ी हूँ। जब भी आता था हमेशा वो इमाम आले मकाम अलैहिस्सलाम के लिए हदिया तोहफे तोहफ़ लेकर आता था। अल्लाह अकबर, हमेशा तोहफा तोहफ़ लाता। इस मर्तबा जब वो तोहफा लेकर चलने लगा तो एक मर्तबा उसकी ज़ौजा और मोमिना उससे कहती है कि ये कैसी एक तरफा मोहब्बत है, आप हमेशा जो है तोहफा लेकर जाते हैं लेकिन आपका इमाम कभी आपको तोहफा नहीं देता है। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा तड़प गया और फड़क गया। वो कहने लगा कि मोमिना तूने ये क्या किया, तूने ये ज़बान से अल्फाज निकाल दिए। ये बात मेरे मौला को पता लग गई, ये बात उन तक पहुंच गई। पता चला आपको